today's topic is multiple endocrine neoplasia, that is MEN syndrome. So there are multiple endocrinal tumors. That's why the term multiple endocrine neoplasia. Multiple means two or more than two. Endocrinal glandular tumors present in a single patient, then it is known as MEN syndrome. Now, what are the important glands in the body? Endocrinal system. Jैसे you have the pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, and your reproductive system is also a part of your glandular endocrinal system. Ovary, testes, these also secrete hormones. Pancreas? Yes, pancreas. Pineal? Pineal is also gland, but Not necessary. not relevant here. So if any of the two glands are involved, two glands have tumors, then there is multiple endocrine neoplasia, MEN syndrome. Now it is of multiple types. The MEN1, MEN2A, MEN2B, MEN4. Where is 3? MEN2B is also known as MEN3. Then why there is subclassification of MEN2, MEN2A and B? Because there is some similarity based upon gene, both have mutation of RET proto-oncogene. And both MEN2 have medullary carcinoma, thyroid and pheochromocytoma. This is common thing between MEN2A and MEN2B. MEN1 mostly has neither medullary carcinoma, thyroid. Some patient may have pheo, but it's very rare. So to remember it easily, you can easily remember that there is no MTC or pheo in MEN1. So in MEN1, the patient presents with hyperparathyroidism. That means patient has parathyroid hyperplasia. Parathyroid hyperplasia is present in more than 90% of patients. That means more than 90% patients present with features of primary hyperparathyroidism, right? Secondly, there is pituitary tumors. Pituitary tumors can be of two types, exocrine and endocrinal. Exocrine pituitary tumors like pituitary adenocarcinoma are not there. Only endocrinal like gastrinoma. Gastrinoma is the most common tumor linked with MEN1 syndrome. Patient has continuous acidity because gastrin is high. Other common are like the insulinoma. I am only प्रोलैक्टिन तो पिट्यूटरी हो गया ना. ओह सॉरी, ये आपको लगता है डिलीट ही करना पड़ेगा. मैं पेंक्रियाटिक बता रहा हूँ. हाँ, पिट्यूटरी ट्यूमर्स के अंदर आ जाएगा जैसे एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा एंड द पेंक्रियाटिक. पेंक्रियाटिक में आएगा आपका गैस्ट्रिनोमा, इंसुलिनोमा. राइट.
The most common presentation of man 1 is gastrinoma. पापा पी Wow. कोड भी है पैराथायरॉयड पैंक्रियाटिक पिट्यूटरी पापा पी हाँ, अब याद रहेगा हाँ। हमेशा के लिए. ठीक है तो पैराथायरॉयड पैंक्रियाटिक पिट्यूटरी ठीक है. ठीक है थायराइड एड्रिनल पापा पी से अलग ग्लैंड्स कौन सी बची हैं थायराइड एंड एड्रिनल तो वो वाली ग्लैंड्स मैन टू में इन्वॉल्व हो रही हैं बिकम सिमिल थोड़ा सा इजी टू रिमेंबर Yes. ठीक है मैन 1 का जो जीन है दैट इज मैन 1 11q13 म्यूटेशन ये जीन की लोकेशन है जीन का नाम है मैन 1 मैन 2 का दोनों का रेट है 10q11 पे प्रेजेंट है ठीक है और मैन 2a और 2b में डिफरेंस है ये दोनों तो कॉमन है तभी तो मैन 2 है ना व्हाट इज a व्हाट इज b a के अंदर अगेन पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया हो सकता है तभी तो मैन 2a है ना क्योंकि वो 1 के पास है तो इसमें कुछ फीचर मैन 1 वाले हो सकते हैं पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया जो मैन 2b है उसके अंदर मैरफेनोइड फीचर्स होते हैं मैरफेनोइड हैबिटस बोलते हैं इसको जो मैरफन सिंड्रोम होता है मैरफेनोइड सिंड्रोम है मान लो तो मैरफेनोइड हैबिटस हैं इसमें क्या होता है जो मैरफन सिंड्रोम है उसमें क्या होता है कि पेशेंट की हाइट बहुत लंबी होती है उसके जो हैंड्स की लेंथ है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द बॉडी होती हैं बॉडी उतनी लंबी नहीं होगी तो हाथ और लंबे होंगे फिंगर्स बहुत लंबी होंगी उनमें गैप्स होगा फ्लैट फेस होगा और बॉडी ऐसे थोड़ी झुकी हुई हो सकती है तो इस टाइप के जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं वैसे फीचर पेशेंट के अंदर होते हैं ठीक है प्लस म्यूकोजल न्यूरोमास होते हैं जहां भी उसकी म्यूकोजा प्रेजेंट है वहां पर मल्टीपल न्यूरोमास हो सकते हैं राइट तो ये थे मैन 2b या मैन 3 के फीचर्स अब हम आते हैं मैन 4 मैन 4 का जो जीन है दैट इज CDKN1B जो कि आपका 12q13 पे प्रेजेंट है ठीक है और मैन 4 में क्या होता है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मैंने बताया ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज पार्ट ऑफ एंडोक्राइनल सिस्टम तो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ट्यूमर्स हैं प्लस यहाँ पे आपका पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है मतलब उसका एडिनोमा हो सकता है पिट्यूटरी एडिनोमा भी हो सकता है but main differentiating feature is reproductive organ tumors like testicular malignancy patient presenting with testicular malignancy as well as parathyroid adenoma or pituitary adenoma that falls under man 4 Okay. and there is also a variant of this man 2a with the MTC only बोलते हैं उसको उस पेशेंट को सिर्फ सिंगल ही डिजीज होती है मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड ओनली वो भी रेट जीन की म्यूटेशन से होती है और उसको भी आप मैन का पार्ट मान सकते हो बट ऑल्दो इट्स सिंगल मैलिग्नेंसी Okay. एज से कोई लेना देना है मैन 1 2 का एज प्रेडिक्शन एज वो मुझे आइडिया नहीं है तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है बस इतना ही आता है ना क्वेश्चन हाँ मेनली तो यही है बाकी तो फिर ये है कि आप ईच मैलिग्नेंसी को कैसे ट्रीट करेंगे वो अलग अलग पार्ट हैं